اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اب اپنے مائکس بند کر لیجیے انشاءاللہ تاکہ پھر بیچ میں ڈسٹربنس نہیں. آئی تھنک زینت آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے ابھی, سو ناؤ یو ہیو ٹو میوٹ اٹ. تو ویلکم ٹو آل آف یو فرام ٹورانٹو اینڈ ویلکم ٹو آر نیو سسٹر جو ابھی جوائن کیا ہمارے ساتھ زینت نے. زینت کارجیانی, آپ کو موسٹ ویلکم ٹو دس کلاس. وی آر پلیز ٹو ہیو یو, آنرڈ ٹو ہیو یو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس ہوپ یو کین انجوائے اینڈ بینیفٹ فرام دس کلاس ان شاء اللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دس از Allah's one of his favors among all his favors. اللہ کہتے ہیں نا کہ کن کن favors کو آپ لوگ deny کرو گے. One of his favors on us is that Allah has granted us کہ we are able to continue our class wherever we may be. الحمدللہ بہت بڑا یہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ وہ کلاس روم انوائرمنٹ, کلاس میں آؤ سب کچھ کرو, and then 2 years of COVID بھی ماشاء اللہ we continued. اس وقت میں ٹریول پہ ہوں, تو ویلکم فرام ٹورانٹو آل آف یو. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے, وی کین اسٹل کنٹینیو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایسا کوئی موقع آئے گا کہ آئی ایم ٹریولنگ, اور یا ان دنوں میں آئی ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو کہیں بیٹھ کے میں کر سکوں, تو پھر اس دوران میں آپ کو ایک دن پہلے بتا دوں گی, جس طرح میں ریمائنڈر بھیجتی ہوں کہ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک کلاس ٹمارو, بٹ ایز فار ایز وی کین انشاءاللہ میں یہی ٹرائی کروں گی کہ کلاسز مس نہ ہوں. کیونکہ یہاں سے ٹورانٹو سے پھر کائرو, کائرو سے پھر ابو دھابی سے پھر پاکستان, تو اس کو ابھی لائک ٹریولنگ میرا چلتا ہی رہے گا. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹاپ بیکاز اتنے دن کی چھٹی ہوگی تو سب لوگ, آئی مین اٹس ناٹ دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. پڑھتے پڑھتے بیچ میں اتنی بڑی گیپ نہیں آنی چاہیے. تو may Allah accept it from all of us, مجھ سے بھی, آپ سب سے بھی, اور اللہ ہم سب کو ریوارڈ دے, جزا دے. بیکاز ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کوشش اللہ کی بک کو سمجھنے کی کوشش کریں. وی آر ٹرائنگ ٹو انکریز آر نالج. ربی زدنی علما سب پڑھیں, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو انکریز آر نالج آف ہز بک, دا بک آف آور دین. سو الحمدللہ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا دا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن آف, ٹیوزڈے نہیں تھا, تھرسڈے تھا نا, تھرسڈے تھا, آج ٹیوزڈے. Alhamdulillah, last Thursday we completed the word for word translation of ayah number 228 of Surah Al-Baqarah. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 229. دیکھیں میں یہ نکالنا بھول گئی تھی. 229. Give me just 1 second. سوٹ کیس میں پڑا تھا, نکالا اور کر لیا ماشاءاللہ. سوری تھوڑا سا آپ لوگ کو ڈیلے. 229. اوکے, وی اسٹارٹ فرام ہیئر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ایک آیت ہے اور بہت سیریس قسم کی آیت ہے, اینڈ وی ہیو ٹو فلی کنسنٹریٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس آیت. الطلاق, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الطلاق یعنی the divorce. جو طلاق ہوتی ہے, جو ڈیورس ہوتا ہے, it is مرتان. مرتان آپ کو پتہ ہے, مرتانی مرتینی کا کیا مطلب ہے, 2 times. So الطلاق مرتان means کہ the طلاق, the divorce is 2 times, 2 مرتبہ ہے. اردو میں آپ کہیں طلاق 2 مرتبہ ہے. ابھی آپ مجھ سے پوچھیں مت کہ پھر 3 طلاق کیوں ہوتی ہے. I will go into that also inshallah. So the divorce is 2 times. الطلاق مرتان. فإمساكٌ, then امساکن, امساکا کہاں سے آتا ہے, میم سین کاف, امسکا یمسکو امساکن, امسکا یمسکو امساکن, یہ فارم 4 ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو روک لینا یا ٹو ریٹین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے, فَإِمْسَاكٌ then to retain, پھر روک لینا, بِمَعْرُوفٍ. معروف کا لفظ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, اور عرف سے ہے عین را فا. اس کا مطلب ایک ریزنیبل مینر میں, ایک کائنڈ مینر میں, اچھائی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, جو کسٹم ہے
जो उर्फ है, जो जाना पहचाना तरीका उसके साथ अगर आप रोक रहे हैं अपनी बीवी को, औ तसरीहुम बि ihsan, औ यानी और, यानी या, उर्दू में कहते हैं या, उर्दू में इंग्लिश में कहेंगे और तसरीह के रूट लेटर्स हैं सीन रा हा, उसका मतलब छोड़ना। सर्रहा, सर्रहा युसर्रिहु तसरीहुन, सर्रहा युसर्रिहु तसरीहुन, ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 2, सर्रहा, ठीक है ना। तो तसरीहुन का मतलब है या और टू रिलीज, उर्दू में आप कहेंगे या छोड़ देना, या आप उसको रोक लें या आप उसको छोड़ दें। और किस तरह कहा था पहले? बिल मारूफ, अच्छाई के साथ, और छोड़ने का क्या कह रहे हैं? बि एहसान, एहसान के साथ। और एहसान आपको क्या बताया था कि एहसान का मतलब ये नहीं कि हम जो एहसान कहते हैं मैंने तुम पे एहसान जताया है, तुम पे एहसान किया है। एहसान का मतलब ये है इन द बेस्ट वे, एक्सीलेंट वे, बेहतरीन तरीके से। तो either you retain your wife in the best way, in according to in with kindness, or you leave your wife in the best way, excellent way, बेहतरीन तरीके से। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वला यहिल्लु लकुम, and not is lawful for you, not is permissible for you, और आप नहीं है हलाल आपके लिए, आपको इजाजत नहीं है अन तअखुजू, that you take, कि आप ले लें मिम्मा आतैतुमुहुन्ना, मिम्मा फ्रॉम दैट या फ्रॉम व्हाट आतैतुमुहुन्ना यू गिव देम, जो आपने अपनी बीवियों को दिया था उसमें से, यानी जो आपने उनको दिया था उसमें से आप कुछ ले लें, वो आपके ऊपर हलाल नहीं है। आता युक्ति ईता उन कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 4, फ्रॉम व्हाट यू गिव देम, उसमें से जो आपने उनको दिया था उसमें से आपके ऊपर हलाल नहीं है, आपके ऊपर परमिसिबल नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग फ्रॉम व्हाट यू गिव। एनीथिंग बाद में आ रहा है शैअन, मिम्मा अतैतुमुहुन्ना शैअन, शैअन आप पढ़ चुके हैं कई दफा, एनीथिंग, कोई भी चीज जो आपने अपनी बीवी को दिया है उसमें से कोई भी चीज आप वापस ना लें, ठीक है ना। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट वी डू ऑल द टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज आर द इंस्ट्रक्शन। इसलिए आपको कह रही हूँ गौर से देखें अल्लाह के अल्फाज क्या हैं। कोई चीज आपको इजाजत नहीं है, हलाल नहीं है उनसे वापस लेने की जो आपने अपनी बीवियों को दिया, इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, इल्ला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, क्या एक्सेप्टेंस है, यानी सिवाय इसके अन यखाफा, that they both fear, दोनों, यखाफा है, यखाफा यखाफू होता है ना, इसमें यखाफा अलिफ है, उसका मतलब डुअल का है, सिवाय ये के दोनों को खौफ हो, except if they both are afraid, या if except they both fear अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, अल्लाह that not, ये ला है not, that not युकीमा, again there is an alif, उसका मतलब डुअल के लिए है, so that not they both can keep, कि वो दोनों नहीं कायम रख सकेंगे। अकामा युकीमू आप पढ़ चुके हैं, अकामा युकीमू इकामतुन फॉर्म 4 है, जो इकामा देते हैं ना, जो खड़े होते हैं तो उसके लिए भी बोलते हैं इकामा। तो दे बोथ कैन नॉट कीप, नहीं रख सकेंगे, कायम नहीं रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह, अल्लाह के लिमिट्स को, अल्लाह की हदों को, द लिमिट्स ऑफ अल्लाह। जब हम लिमिट्स ऑफ अल्लाह कहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह के लिए कोई लिमिट है, सो आई प्रेफर टू यूज द वर्ड द लिमिट सेट बाय अल्लाह। सेट बाय अल्लाह यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हुदूद अल्लाह लिखा है, तो हर जगह आपको ट्रांसलेशन मिलेगी द लिमिट्स ऑफ अल्लाह, लेकिन अल्लाह की कोई लिमिट नहीं है, अल्लाह ने हमारे लिए लिमिट्स रखी है। सो आई प्रेफर, आप इंग्लिश में लिखें तो आप लिखें द लिमिट सेट बाय अल्लाह, और आप उर्दू में भी कहें अल्लाह ने जो हदें मुकर्रर की हैं, बट डायरेक्ट ट्रांसलेशन इज द लिमिट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की हदों को। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर आप ये फियर करते हैं कि आप अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, यू कैन नॉट अबाइड बाय और यू कैन कीप द लिमिट्स सेट बाय अल्लाह, फइन खिफ्तुम, बट इफ यू फियर, बस अगर आपको खौफ है, यानी हर्फ शर्त है, अगेन इट्स अ पार्टिकल फॉर कंडीशन, पार्टिकल ऑफ कंडीशन, लेकिन अगर आप फियर करते हैं, अगर आपको खौफ है, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, कि नॉट दे बोथ कैन कीप द लिमिट्स विच आर सेट बाय अल्लाह, कि दोनों नहीं कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। ये सिवाय था, पहले एक्सेप्शन था कि सिवाय अगर आप अल्लाह की हदों को कायम, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर आपको ये डर है, इफ यू आर अफ्रेड बोथ ऑफ यू, इफ दे आर स्कैर्ड कि वो लोग अल्लाह की हदों को नहीं कायम रख सकेंगे, फला जुनाहा अलैहिमा, देन नॉट इज एनी सिन ऑन अलैहिमा, ऑन बोथ ऑफ देम। अलैहिम नहीं है क्योंकि अलैहिम इज प्लूरल, यहाँ दोनों की बात हो रही है, मियाँ बीवी जो अभी तलाक हुई उनकी बात हो रही है। फला जुनाहा अलैहिमा, देन नॉट इज एनी सिन ऑन बोथ ऑफ देम, तो नहीं है कोई गुनाह दोनों पर। फी मफ्तदत बिही,
मफ्तदत फा दाल या, इसका क्या मतलब है? इफ्तदा यफ्तदी इफ्तिदाउन, ये कौन सा फॉर्म है? इफ्तदा से शुरू हो रहा है ना, तो फॉर्म 8 है ये, यानी कि वो रैंसम करे। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आपने जो कुछ अपनी बीवी को दिया, अगर आप तलाक देते हैं अपनी बीवी को तो उससे कोई चीज मत लो अनलेस के आप अल्लाह के हुदूद को कायम ना रख सकें। और अगर आपको ये फियर है कि अल्लाह के हुदूद को नहीं कायम रख सकें तो वो औरत जो है वो उसमें से कोई फिदिया दे दे। अगेन इसमें अब खुला की बात आएगी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट खुला राइट नाउ, अभी हम सिर्फ वर्ड फॉर वर्ड कर रहे हैं। इन व्हाट शी रैंसम्स फॉर इट, यानी उसमें से जो वो औरत फिदिया दे दे, जो कोई मुआवजा दे दे उसके बदले में। नाउ शी वांट्स टू नॉट टू गो बैक टू हिम, तो इसलिए वो कोई रैंसम दे। तिल का हुदूदुल्लाह, तिल का हुदूदुल्लाह, अब तिल का दोष होता है, ये इसमें इशारा बाईद है, फार के लिए है, लेकिन जब तिल का यूज होता है तो उसको नॉर्मली कहता है दोज आर द लिमिट्स के बदले दीज आर द लिमिट्स कहते हैं। दीज आर द लिमिट्स, ये हदें हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं। दीज आर द लिमिट्स सेट बाय अल्लाह, फला तातदूहा, तातदू आप कई दफा पढ़ चुके हैं, एतदा या अतदी एतदाउन, अगेन ये फॉर्म 8 है, डू नॉट ट्रांसग्रेस, ला तातदूहा, बस डू नॉट, फला तातदू, सो डू नॉट ट्रांसग्रेस देम, डू नॉट क्रॉस द लिमिट्स, बस नहीं आप तजावुज करें, इससे नहीं आप क्रॉस करें, नहीं आप पार करें, नहीं आप ज्यादती करें, इस लिमिट्स को मत क्रॉस करें। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, वमन एंड हुएवर, अब अल्लाह ताला फिर एक कंडीशन लगा रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं मत क्रॉस करो लिमिट्स को, लेकिन फिर साथ एक कंडीशन लगा रहे हैं, वमन यतअद्द, जो अगर क्रॉस करेगा, जो कोई तजावुज करेगा अल्लाह की हदों से, ये एक शर्त है, इसमें अगेन कंडीशनल नाउन आ गया, मन आ गया ना, कंडीशनल पार्टिकल के बदले इट्स अ कंडीशनल नाउन, या तो हर्फ होता है या इसम होता है। whoever transgresses, whoever crosses the limits set by Allah, यानी कि और जो कोई अल्लाह के हुदूद से तजावुज करेगा, उसको गुजरेगा, उससे बाहर निकलेगा, तो और इस ये कौन सा फॉर्म 5, तअद्दा यतअद्दा तअद्दीयुन, ये फॉर्म 5 है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लेकिन जो कोई अगर क्रॉस करेगा अल्लाह के लिमिट्स को, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देने, ये शर्त था ना, अगर कोई क्रॉस करेगा उसका फिर जवाब क्या है? जवाब उस शर्त, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फउलाइका देन दोस, यानी तो वही लोग हैं, दे आर द रॉन्ग डूअर्स, हुमुज़ ज़ालिमून, दे आर द रॉन्ग डूअर्स, तो वही लोग जालिम हैं। ये जवाब उस शर्त है, अगर आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे जो अल्लाह ने सेट की हैं, देन यू बिकम द जालिम, then you become the unjust people, then you are the wrongdoers। तफसीर देख लेते हैं आया नंबर 229 की। इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली बताया, अत्तलाक़ु मर्रतान, डिवोर्स इज ओनली ट्वाइस। अच्छा ये क्यों आया है? क्योंकि लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये कि जब प्री इस्लामिक अरेबिया में, जाहिलिया के दौर में, इस्लाम अभी नहीं ना आया था, देयर वाज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन वुड डिवोर्स, मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी टाइम्स ऑफ डिवोर्स, हर डिवोर्स करते जाए। मैन क्या करते थे? शादी करते थे, डिवोर्स करते थे, सेम औरत से दोबारा शादी कर लेते थे, एंड इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसी औरत को बिल्कुल ह्यूमिलिएट कर देते थे, उसको एम्बेरस करते थे, उसको घर से निकाल देते थे, और फिर क्या करते थे? चलो आ जाओ, तुमसे दोबारा शादी करता हूँ। तो ऐसे एक बंदा था जो कि मदीने में थे ना एक, और उन्होंने अपनी वाइफ को काफी हैरेस किया इस तरह से। उस औरत ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि देखिए मुझे ये मेरा मियाँ मुझे छोड़ता है फिर मुझे वापस लेता है, मुझे छोड़ता है फिर मुझे वापस लेता है, मैं क्या करूं? उस वक्त अल्लाह ताला ने ये वर्सेस रिवील किए। तो ये इसका शान नुज़ूल है, ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो उस वक्त ये आयतें नाजिल हुई कि देखिए 2 दफा इसने कर दिया, तीसरी दफा नहीं होगी इजाजत। ये 2 तलाकों की बात हो रही है, 3 तलाकें मैं बाद में आऊंगी, ठीक है ना। सो ये एक और एग्जाम्पल है कुरान में किस तरह प्रैक्टिकली ऐसे लॉज अल्लाह ताला ने भेजे हमारे प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने के लिए, ताकि हम मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उस वक्त अपनी रूलिंग्स हासिल कर सके और अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर सके। अगर मर्द इसी तरह करते रहते तो इस्लाम में ये चीजें नहीं आती, तो अभी तक वही चल रहा होता। कहीं कहीं चल भी रहा है, लेकिन अब ये कि यही चलता, उसी को तंग करो, उसको हैरेस करो, उसको छोड़ो और फिर उसके साथ फिर दोबारा उसको ले लो। तो लिमिट कर दिया अल्लाह ने कि 2 दफा ऐसा हो सकता है, 2 दफा जिंदगी में, कि आपने डिवोर्स दिया लेकिन आपने उसको रिवोक कर लिया। रिवोक का मतलब ये कि आपने रुजू कर लिया,
आपने उसी औरत को 2 दफा डिवोर्स दिया, आपने रुजू कर लिया, ये 2 दफा हो सकता है। तो इस तरह से अगर इस लॉ को नाफिज किया तो उसकी वजह से मर्द जो है वो औरतों का 2 दफा फायदा उठा सकते हैं या 2 दफा सही काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मर्द औरत का फायदा उठा रहा हो और मर्द हैरेस कर रहा हो, लेकिन इट गिव्स देम अ चांस। तो इस आयत से सबसे जब हम ये देख रहे हैं कि 2 दफा डिवोर्स, फिर आप बोलेंगे कि ये 2 दफा क्यों है, 1 दफा क्यों नहीं है, 3 दफा क्यों नहीं है, तो इस आयत को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूल्स ऑफ डिवोर्स मतलब कैसे, हाउ डज अ डिवोर्स टेक प्लेस इन इस्लाम, हाउ डज अ डिवोर्स टेक प्लेस इन इस्लाम। एक डिवोर्स को, एक तलाक को वैलिड होने के लिए, ये भी आप सब याद रख लें, वैलिड होने के लिए इट मस्ट बी डन बाय अ मैच्योर मेल। जो शौहर है वो मैच्योर हो, वो बालिग हो, मर्द हो। आपने बचपन में शादी कर दी किसी की, अभी वो मैच्योर ही नहीं है, तो शादी भी नहीं हुई और शादी के बाद उसका डिवोर्स भी। तो ये जरूरी है कि मर्द हो, मैच्योर हो, बालिग हो। नंबर 2, ही शुड बी सेन। सेन यानी उसकी सैनिटी हो, यानी उसका दिमागी हालत दुरुस्त हो, वो इनसेन ना हो, ठीक है ना, इनसेन ना, ही शुड बी सेन, ही शुड नॉट बी इनसेन, और उसकी दिमागी हालत दुरुस्त हो। नंबर 3, ही शुड बी इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसली वो बोले। बेहोशी में अगर वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मैंने तुम्हें तलाक दे दी, तो वो नहीं होता है। गुस्सा अलग चीज है, गुस्से में तलाक देंगे तो हो जाएगी तलाक, ये गुस्सा नहीं, क्योंकि तलाक कैसे होती है, गुस्से में ही होती है ना, कोई प्यार से तो नहीं डिवोर्स करता है। तो ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो, यानी होशमंद हो, वो होशमंदी हो। अच्छा, ये मर्द के लिए जरूरी है, औरत के लिए क्या जरूरी है? औरत के लिए ये जरूरी है कि she should be free of her menses at the time the divorce is pronounced. औरत के हैज आ रहे हैं, औरत के पीरियड्स आ रहे हैं, तो जब वो पीरियड से साफ हो जाती है, पाक हो जाती है, उस दौरान में जो पाकी का पीरियड है उसमें डिवोर्स प्रोनाउंस किया जाए। और जो वो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो डिवोर्स, इट शुड बी एट द टाइम ऑफ द प्योरिटी, पाक हो गए, फ्री फ्रॉम हर मेंसेस, और उस पीरियड, उस पाकी के पीरियड के दौरान कपल ने आपस में मुबाशरत नहीं की हो, कपल ने आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो, आफ्टर शी बिकेम पाक एंड बिफोर शी गेट्स द नीम, उस पीरियड में जो तोहर का पीरियड होता है, पाकी का पीरियड होता है। नेक्स्ट चीज क्या है, नंबर 6, ये द कपल शुड, हाँ ये तो मैंने बोल दिया आपको, शुड नॉट हैव हैड इंटरकोर्स। नंबर 7 ये कि द स्टेटमेंट ऑफ डिवोर्स, जब कहते हैं मैंने तलाक दी, एक मर्द कह रहे हैं मैंने तुम्हें तलाक दी, इट शुड बी प्रोनाउंस वन टाइम ओनली, वन टाइम ओनली, ठीक है ना, ये आप याद रखें, लिखें, हम इस पे भी आते हैं। और नंबर 8 ये कि डिवोर्स विल बी कंप्लीट, कब कंप्लीट होगा, उसका डिवोर्स उस वक्त कंप्लीट होगा जब उसके 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ जाएंगे। हमने लास्ट टाइम इद्दत के बारे में पढ़ा था, हमने ये सीखा था कि 3 डिवोर्स को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो बाज उलमा ये कहते हैं कि 3 डिवोर्स उस वक्त कंप्लीट हो जाते हैं जब 3rd मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाए, और बाज लोग ये कहते हैं कि जब 3rd मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म हो जाए और पाक हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, 7-8 दिन का फर्क पड़ेगा, लेकिन उस वक्त उसकी डिवोर्स फाइनल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और ये भी बताना था कि आप लोग कह रहे, अभी मैंने आपको बताया कि शी शुड बी फ्री फ्रॉम डिवोर्स, फ्रॉम मेंसेस, लेकिन अगर डिवोर्स, अगर सॉरी मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान अगर मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, इट विल स्टिल बी काउंटेड, तलाक काउंट होगी, उसको गुनाह मिलेगा मर्द को कि व्हाई डिड यू डू समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द सुन्ना। सुन्ना ये है, सुन्नत में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप ड्यूरिंग द पीरियड्स मत तलाक दें। तो ड्यूरिंग द पीरियड्स आपने नहीं दिया, लेकिन फिर भी द तलाक विल बी काउंटेड इवन इफ द वाइफ इज इन हर पीरियड्स, काउंट हो जाएगा, लेकिन वो गुनाहगार होगा। दूसरी बात ये है कि इफ ही प्रोनाउंसेस मोर देन वंस, मैंने तुम्हें तलाक दी, एक दफा काफी है, अगर एक दफा उसने कहा है, तो अगर वो कहता है मैं तुम्हें तलाक तलाक तलाक, जैसे इंडियन पाकिस्तानी मूवीज में होते हैं, ड्रामों में होते हैं, वो जो 3 तलाकें होती हैं, तलाक तलाक तलाक, वो नहीं है इस्लाम में, वो एक नई चीज है जो इस्लाम में एक बिदअत आ गई है, और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और लोग समझते हैं कि यही सही तरीका है। फिल्मों में भी होता है, ड्रामों में होता है। तो अगर एक आदमी ने एक से ज्यादा दफा, 2 दफा तलाक तलाक कह दिया, 3 दफा तलाक तलाक कह दिया, तभी भी उसको गुनाह मिलेगा, क्योंकि सुन्नत तरीका ये है कि आप एक दफा तलाक दें, और जब आप 3 दफा भी कह देंगे तो इट विल बी काउंटेड एज 1 डिवोर्स। एक सिटिंग में आपने 3 दफा तलाक दी, इट विल बी काउंटेड एज 1 डिवोर्स। इसके भी मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगी इंशाल्लाह। कुरान में कहीं भी देयर इज नॉट अ सिंगल वर्स, एक आयत भी कुरान में ऐसी नहीं है जो ये बताती है कि 3 दफा तलाक दो एक सिटिंग में, कहीं भी ना, पूरे कुरान में ना हदीस में, नॉट इन द कुरान एंड नॉट इन एनी हदीस, ठीक है ना। अब ये कैसे स्टार्ट हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब कोई एक, अगर कोई कर देता,
3 दफा उसने कहा कि मैंने तलाक कर दी, उसका इंटेंशन ये होता कि मैंने एक ही तलाक देनी थी, तो फर्स्ट सेंटेंस जब मैंने कहा मैं इसको तलाक दे रहा हूँ, उसका मतलब ये कि मैंने तलाक दे दी। उसके बाद जो वो 2 दफा और अगर कह भी देता ना तलाक, मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तलाक नहीं हुई, तलाक प्रोनाउंस हो गया, लेकिन वो मेयर उस पे एम्फेसाइज करने के लिए, मेयरली फॉर एम्फेसिस होता था, क्योंकि उस जमाने में वो कहते थे ऐसा ना हो कि मेरी बात समझी ना जाए, वो वैसे एम्फेसाइज करने के लिए बोलते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उस तलाक को एक ही एक्सेप्ट किया जाता था, अगर वो आदमी आके कहता था कि मेरी नियत जो थी सिर्फ एक ही तलाक की थी, 3 दफा तलाक देने की नहीं थी, मैंने सिर्फ एक तलाक दी। उस वक्त लोग प्योर होते थे, उनके हार्ट्स प्योर होते थे, तो उनके क्लेम को एक्सेप्ट किया जाता था। ये सही मुस्लिम में है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है, नरेटेड बाय हिम, कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रॉफिट ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग वाज कंसिडर्ड एज ओनली वन तलाक। ट्रिपल तलाक 3 दफा बोलना वाज कंसिडर्ड एज वन तलाक। फिर एक एग्जाम्पल भी इसमें है, रुकाना या रुकाना बिन यजीद जो हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उन्होंने अपनी बीवी को 3 दफा एक सिटिंग में कह दिया कि मैं तलाक दे रहा हूँ। उसके बाद वो रिग्रेट किया उसने, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और गए, सहाबी थे वो गए और उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने तो 3 दफा तलाक दे दी, अब क्या होगा ना, कुरान में तो है कि 2 दफा होना चाहिए, 30 दफा, अब मैंने 3 दफा दे दिया, अब क्या होगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने कैसे किया था, तो उन्होंने कहा बस मैंने वर्ड तलाक जो था उसको 3 दफा मैंने बोल दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने जब प्रोनाउंस किया था, तीनों एक साथ कर दिया, एक ही सिटिंग में किया या अलग अलग 3 दफा किया? ने कहा एक ही सिटिंग में किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा इरादा क्या था, तुम्हारी इंटेंशन क्या थी? तो उन्होंने कहा कि मेरी इंटेंशन तो एक ही दफा देने की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 तलाक एक सिटिंग में अगर आप दे रहे हैं, इट इज काउंटेड एज वन डिवोर्स एंड ही कैन टेक हिज वाइफ बैक। एक डिवोर्स हुआ है, ही कैन टेक हिज वाइफ बैक। कब वापस लेना है आपको पता है, इद्दत के दौरान वापस लेना है। और फिर ये भी अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ, इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट इट ऑन इन लाइक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से। तो ये रूल कंटिन्यू हुआ, ये लॉ कंटिन्यू हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उनके जमाने में भी यही चलता रहा कि अगर आपने 3 तलाक एक सिटिंग में दे दी तो क्या हुआ, इट इज वन तलाक, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि और हाँ, फिर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उमर रदी अल्लाह ताला के अन्हु के भी शुरू में यही चलता रहा, यही लॉ चलती रही, यही रूलिंग चलती रही। लेकिन जब टाइम गुजर रहा था, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि लोग जो है झूठ बहुत बोल रहे हैं। उस जमाने में लाइंग हैड बिकम रियली कॉमन। और लोग क्या करते थे, उन्होंने देखा कि लोग आते थे उनको बताने के लिए कि वो 3 दफा तलाक बोल देते थे और फिर ये कहते थे नहीं हमने बोला तो 3 दफा है, 3 दफा तलाक थी, लेकिन हमारा मतलब एक ही दफा था और ये तो हम सिर्फ एम्फेसिस के लिए बोल रहे थे। उन्होंने क्या किया, मर्दों ने तलाक को एक जोक बना लिया, एक मजाक बना लिया, एक हैरेसमेंट का तरीका बना लिया। वो क्या करते थे, अपनी वाइफ्स को 3-3 दफा तलाकें देते थे, बल्कि सेवरल टाइम्स दे देते थे। वो अटर करते थे तलाक का लफ्ज और कहते ओ मैंने तो तुम्हें 100 दफा तलाक, मैंने तो तुम्हें 10 दफा तलाक दी, एक जोक बना लेते और फिर उसके बाद अपनी वाइफ को तंग करके वापस ले लेते थे। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि वो जो ऐसी बिहेवियर मर्दों की थी, औरतें सफर करने लगी, बीवियों के लिए बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि वो एक जब वो कहता था कि हमने तुम्हें तलाक दे दी, अब बीवी ह्यूमिलिएट भी हो गई, एम्बेरस भी हो गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, अलग भी हो गई और फिर उसके बाद कहते नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम वापस आ जाओ, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर वो वापस आती और फिर वो दोबारा, फ्रीडम तो उसको नहीं मिलती थी ना, वही हस्बैंड उसको वापस ले लेता था और उसके इख्तियार में था कि वो वापस ले। तो इख्तियार में ड्यूरिंग द इद्दत वापस ले ले, तो कहते थे चलो मैंने वापस ले लिया। तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता था, विशियस सर्कल यानी बार बार वही चीज रिपीट होता रहता था। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये किया कि अब से जो मर्द तंग कर रहे हैं औरतों को, अब से मैं ये रूल बना देता हूँ कि, और आपको पता है ना हमारे रूलिंग्स क्या हैं, हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये कभी भी नहीं हुआ, तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद जो खुलफाए राशिदीन 4 आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि ये मेरे बाद ये 4 जो हैं जो भी बोलेंगे वो भी आपके लिए रूलिंग के लिए होगा, रूलिंग के बराबर होगा, इट बिकम्स द लॉ। तो ये चारों जो थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जितने भी रूलिंग्स बनाए वो भी हमारे लिए, इसीलिए हमको कहा जाता है अहले सुन्ना वल जमा, यानी अहले सुन्ना भी है और फिर वो 4 जो आए उनका भी जमा, उनके भी हम बात हमारे लिए रूलिंग्स है। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि ये तो बहुत ही गलत बात है, तो अगर आप 3 तलाकें देंगे इट वुड बी काउंटेड एज 3,
اور اگر 3 دفعہ ہو گیا اس کا مطلب اب آپ کی یہ طلاق جو ہے یہ irrevocable ہو گئی, اب آپ کا جوائن نہیں, آپ واپس آ نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اور یہ جو ہے یہ نیکسٹ آیت میں آئے گی, ابھی ہم نے نہیں پڑھا. تو جو بھی انٹینڈ کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے لیکن میں نے 3 دفعہ دیا تھا, میرا مطلب ایک دفعہ, نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. اور اس لیے کیا ہوا, انہوں نے کہا اس طرح نیت کیا تھی, انٹینشن کیا تھا کہ وہ ہسبینڈس کو پریونٹ کریں فرام ہارمنگ دیئر وائفس, فرام ہیراسنگ دیئر وائفس, کیونکہ وہ سپرفلوئسلی اسٹیٹمنٹ آف ڈیورس دیتے تھے جو کہ وہ کہتے تھے یہ تو کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے. ابھی بھی میں جانتی ہوں پاکستان میں کچھ لوگوں نے کہا میں نے تو اس کو 10 دفعہ طلاق دی. I mean, like, what is this? یہ اللہ, یہ ایک کانٹریکٹ ہے, اللہ کے سامنے آپ نے شادی کا کانٹریکٹ کیا ہے, آپ اس کو اس طرح سے ختم کر سکتے ہو کہ آپ بیوی کو تنگ کرو تنگ کرو تنگ کرو, پھر کہو میں تو 10 دفعہ دباز دیا. اچھا, امام ابو حنیفہ اینڈ امام مالک رحم اللہ علیہم دونوں کا, ان دونوں کا یہ اوپینین ہے, ان کی یہ رائے ہے کہ 3 طلاق اگر آپ نے ایک سینٹینس میں ایک ساتھ ایک سٹنگ میں دے دیا تو اٹ از حرام اینڈ اٹ از اے بدعہ. یہ ایک نئی پریکٹس ہے اور اٹ از اے بدعہ اینڈ اٹ از حرام. اور امام احمد ابن حنبل وہ بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ کچھ بتاتے ہیں. تو بہت سارے ماڈرن اسکالرز جو ہے, اب ہماری کنٹمپرری اسکالرز جو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائپ آف ڈیورس جو ہے یہ فیملیز کو صرف نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی, وائف کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو وی شوڈ ریٹرن ٹو دی اوریجنل وے. حضرت عمر کے انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کام کیا, انہوں نے صحیح کیا تھا, لیکن اب انہوں نے کہا کہ وی شوڈ ریٹرن ٹو دس, کہ اب جب ملٹیپل ڈیورس اگر ایک دے رہے ہیں لوگ تو اس کو اٹ شوڈ بی کاؤنٹڈ ایز ون, کیونکہ اب لوگ اس طرح سے پھر تنگ کر رہے ہیں نا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اب آپ اس کو یہ کریں کہ اب یہ لوگ ملٹیپل ڈیورس اس کو, کیونکہ اس طرح ایک چانس ملتا ہے. ابھی بھی ڈفرینس آف اوپینینز ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں اگر آپ نے مرد نے ورڈ طلاق اٹر کر دیا, بول دیا, تو ڈیورس ہو گئی. ایک دفعہ بول دیا, ڈیورس ہو گئی, ایون اگر وائف پریزنٹ نہ ہو. یہ یاد رکھے. ابھی بھی مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا پاکستان سے کہ بیوی موجود نہیں تھی اور اسے کہا میں طلاق دیتا ہوں. کوئی بات, اس نے منہ سے لفظ کہہ دیا طلاق, وہ طلاق ہو. ہی uttered the word divorce and for the wife, اس نے نام لے کے کہا یا جو بھی کہا, ایک ہی وائف تھی اور اس نے کہا کہ یہ وائف, تو ان کی ایبسنس میں بھی اگر کوئی پریزنٹ بھی نہیں تھا, کوئی وٹنس بھی نہیں تھا, پھر بھی اگر اس نے کہہ دیا اور اس نے کہا میں نے یہ کہا ہے, the طلاق will take place. اسی طرح اگر زبانی نہیں کہا, اس نے لکھ کر دے دیا ایک میسج پہ, اس نے ایک پیس آف پیپر پہ لکھ کے دے دیا, اس نے ٹیکسٹ میسج کر دیا ود دی انٹینشن آف ڈیورس, تو وہ بھی ایک ڈیورس کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اٹ از ناٹ اسینشیل, اٹ از ناٹ obligatory ٹو ہیو witnesses ٹو دا ڈیورس. however ریکمینڈیڈ ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے کہ 2 وٹنس, دیکھیں شادی کے لیے 2 وٹنس ضروری ہے, اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی. طلاق کے لیے 2 وٹنس ضروری نہیں ہے, obligatory نہیں, بٹ اٹ از اسٹل ریکمینڈیڈ. کیوں ریکمینڈیڈ ہے؟ کیونکہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہو جائے. وہ بولے کہ میں نے تو طلاق نہیں دی ہے, وہ عورت بولے کہ میں نے, اس نے تو مجھے اتنی دفعہ طلاق دی ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کمپلیکیشن نہ ہو, اور پھر بھی جب کورٹ جائیں تو ان لیگل پرپزز کے لیے بھی کوئی وٹنس ہو. تو اسی لیے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ طلاق جو ہمارے پاس ہو رہی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وٹنس بھی رکھتے ہیں, چاہے فون پہ ہو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن وٹنس بھی رکھتے ہیں. اور اگر 3 طلاقیں ایک سٹنگ میں دے رہے ہیں تو ہمارے کم از کم ہمارے پاس تو امریکہ میں, کیلیفورنیا میں یہی ہے کہ اٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز 1 طلاق. اچھا, اب طلاق تو ہو گئی, ایک طلاق دے دیا آپ نے, اٹر کر دیا, لکھ کے دے دیا. اب اس وائف کو آپ واپس لینا چاہ رہے ہیں, رجوع کرنا چاہ رہے ہیں. طلاق رجعی ہے یہ, کیونکہ اس میں رجعی, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, رجوع کر سکتے ہیں, ڈیورس دے کے رجوع کر سکتے ہیں. اب ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا, آئی تھنک لاسٹ ویک ہی سیکھا تھا, کہ جب طلاق دی جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, عورت اپنی عدت شروع کرتی ہے. ہر ویٹنگ پیریڈ سٹارٹس, اینڈ ویٹنگ پیریڈ کتنا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا, 3 menstrual cycles. میں نے بتایا تھا ڈفرینس آف اوپینین ہے, کب شروع ہوتا ہے یا اینڈ ہوتا ہے, تھوڑے دنوں کا. اگر وہ menstrual پیریڈ میں ڈیورنگ دا مینسز طلاق, میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر وہ اس دوران اگر طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے, لیکن ایک چیز اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا. جس پیریڈ کے دوران طلاق دیں گے وہ مینسٹرل پیریڈ ڈیورنگ دیٹ ول ناٹ بی کاؤنٹڈ, اس کے علاوہ 3 کاؤنٹ ہوں گے. سو دیٹ پیریڈ از, مطلب طلاق ہو رہی ہے لیکن دیٹ از ناٹ کاؤنٹڈ ایز ون آف دا پیریڈس آؤٹ آف دا 3 پیریڈس جو اس کے گننے ہیں. ٹھیک ہے نا, 3 menstrual periods. اچھا, اب عورت کا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو مینسٹرل پیریڈ ہے, لیکن وہ عورت اگر اس کو پیریڈز نہیں آتے ہیں, اگر وہ مینوپاز پہ ہے, اس وہ مینسٹریٹ نہیں کرتی ہے, تو پھر طلاق کی مدت کتنی ہے؟ طلاق جو عدت ہے اس کی ہے 3 months. 3 menstrual periods اگر نہیں ہے, اس کے پیریڈز ہی نہیں آ رہے تو 3 months.
अभी लोग ये कहते हैं ना कि अगर मेनोपॉज है तो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती है, जाहिर है ना। लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये इद्दत सिर्फ इसलिए होती है कि पता चले कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, इसका बच्चा किसका बच्चा है। नहीं, दैट्स नॉट द रीजन. द रीजन इज दैट कैन बी एन आउटकम, दैट कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस, दैट कैन बी वन ऑफ द रिलेटेड इश्यूज. असल बात ये है, हाँ, क्योंकि ये भी अल्लाह ने कहा कि छुपाना नहीं है जो आपके रहम में है, लेकिन अगर वो नहीं मेंस्ट्रुएट करती है, अगर वो मेनोपॉज पे, तो भी उसकी इद्दत है, और उसकी इद्दत कितनी है? 3 मंथ्स. वो 3 मंथ्स है. और अगर वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान तलाक दे दी तो भी तलाक होती है. हम कहते हैं ना, ओ ये तो प्रेग्नेंट थी, तलाक नहीं हुई, ये भी सुनते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में भी तलाक होती है. और उसकी इद्दत कब कंप्लीट होगी? जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा, या वो अपने बच्चे को लूज, आई मीन लाइक मिसकैरेज हो गया, तो भी उसकी इद्दत खत्म. मिसकैरेज के साथ, या एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, व्हेन शी गिव्स बर्थ, तो या और व्हेन शी लूजेस हर चाइल्ड, तो उसकी इद्दत कंप्लीट हो गई. अब वो कब भी हो सकता है. समझिए कि 9 महीने गुजर गए हैं उसकी प्रेगनेंसी के, उसका बच्चा, आज इसको तलाक मिली और परसों इसका बच्चा पैदा हो गया, या 1 हफ्ते में पैदा हो गया, तो उसकी इद्दत कितनी रही? 3 महीने, 3 प्रेग्नेंट, कुछ नहीं, मेंस्ट्रुअल कुछ भी नहीं. द मिनट शी गिव्स बर्थ, उसकी इद्दत स्टार्ट हो गई, उसकी इद्दत खत्म हो गई, सॉरी स्टार्ट हुई कह रही हूँ, खत्म हो गई, या वो अपने चाइल्ड को लूज करके बैठ गई. तो ड्यूरिंग द इद्दत, अच्छा वो 4 दिन भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि अभी तो प्रेग्नेंट हुई है, पहला मंथ है, उसको पता भी नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 9 महीना तक वो वेट करेगी जब तक उसकी इद्दत नहीं खत्म होगी. तो इट कैन बी एज इजी एज दिस एंड एज डिफिकल्ट एज दैट. ड्यूरिंग द इद्दा जो है, मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को नॉर्मली ट्रीट करे, बल्कि नॉर्मल से बेहतर ट्रीट करे. और नॉर्मल वाइफ के जो राइट्स होते हैं वही नॉर्मल उसके भी राइट्स होने चाहिए. उसको मेंटेनेंस दे, उसका खाना पीना दे, उसका उसी घर में उसको रखे. सिर्फ क्या चीज नहीं होगी? आपस में मुबाशरत नहीं होगी, आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटीमेसी नहीं होगी, बस समझे. फिर ड्यूरिंग द इद्दत, उस इद्दत के दौरान, उस 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में, या उस 3 मंथ्स में, द मैन हैज द राइट, हमने पढ़ा था, द मैन हैज द राइट टू टेक हर बैक विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, विदाउट अ न्यू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी मेहर, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ. अगर ये मर्द कहता है कि भाई मैं तुम्हें वापस लेता हूँ, आई हैव टेकन यू बैक, मैं तुम्हें वापस ले रहा हूँ, इद्दत के दौरान वो कह रहा है कि मैं तुम्हें वापस लेता हूँ, या वो अपनी बीवी को किस कर ले, हक कर ले, डिजायर से हक कर ले, तो ये सब चीजें वो कर सकता है. एंड देन उसका मतलब क्या हुआ कि आई एम टेकिंग यू बैक, मैंने तुम्हें वापस ले लिया, ठीक है ना. तो वो बीवी जो है वो इसीलिए कहते हैं ना कि बीवी को चाहिए कि उस वक्त वो जरा तैयार व्यार रहा करे, और अच्छी तरह दोनों मिलके रहें. दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग थी और इमोशंस थी इतने साल तक या जितने दिनों तक जो भी था, तो वो दोबारा से उनमें आए. तो ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब वो बीवी को वापस ले, जैसे तलाक है, तलाक में भी ऑब्लिगेटरी नहीं है, मुस्तहब था कि 2 विटनेसेस हों. इसी तरह जब अपनी बीवी को वापस ले रहा है तो भी मुस्तहब है कि 2 विटनेसेस रखें. इट्स नॉट अ मस्ट, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, लेकिन वो जब डिवोर्स को रिट्रैक्ट करता है तो वो 2 लोगों को बता दे, 2 विटनेसेस को कह के मैंने अपनी वाइफ को वापस लिया, ठीक है ना, बता दे. क्योंकि ये अगेन कोर्ट की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, किसी को पता है, नहीं पता है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रही है. जब डिवोर्स होती है ना, इट बिकम्स रियली डर्टी, क्योंकि बीवी कुछ बोल रही है, मियाँ कुछ बोल रहा है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं. तो इसीलिए, अच्छा, अब इद्दत के दौरान उसने वापस ले ली. अगर इद्दत के दौरान अपनी बीवी को वापस नहीं लिया और इद्दत गुजर गई, अब जो है ये डिवोर्स फाइनल हो गई, ये डिवोर्स कंप्लीट हो गई. इसमें 3 डिवोर्स की जरूरत नहीं है, इट वाज ओनली 1 डिवोर्स. 1 डिवोर्स दिया, इद्दत पूरी हो गई, 3 मंथ्स हो गए या 3 मंथ्स हो गए, नॉट डिवोर्स इज फाइनल. लेकिन ये डिवोर्स फाइनल है, लेकिन ये जो है इसमें फिर भी दोबारा से इनकी शादी हो सकती है. दोबारा से अगर उनको आपस में दोबारा वापस आना है, and this is after the iddat finishes, then a fresh marriage contract, एक fresh निकाह जो है, fresh मेहर दोबारा से रखेंगे, मेहर रख के दोबारा से निकाह करेंगे, ये करना जरूरी है. तो ये एक डिवोर्स की बात हो गई. अच्छा, एक डिवोर्स के बाद आप वापस आ गए, आप दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे हो गए, दोबारा निकाह कर लिया, सब कुछ होगी, यू स्टार्ट अ फ्रेश लाइफ, क्योंकि आप लोगों ने सोचा कि अब हम इकट्ठे रहेंगे, अब हम अल्लाह की हुदूद को कायम रखेंगे, अब मैं एक दूसरे को मिसट्रीट नहीं करेंगे, कि जरूरी नहीं कि हस्बैंड ही मिसट्रीट कर, वाइफ मिसट्रीट कर सकती है. अब हम जो है, अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी लाइफ को अच्छा गुजारेंगे. लेकिन कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, चाहे कुछ अरसा हुआ, चाहे 2 दिन हुए, चाहे 4 दिन हुए, चाहे 4 साल हुए, चाहे 40 साल हुए, अब क्या हुआ
کہ میاں بیوی کی پھر دوبارہ سے گڑبڑ ہوئی, اب دوبارہ سے ان کو ڈیورس دینا ہے, اب سیکنڈ ڈیورس آ رہا ہے, ان کا پہلا ڈیورس تو ہو گیا تھا, اب یہ سیکنڈ ڈیورس آ رہا ہے, اب پھر یہی ہوگا کہ سیم رول اپلائی ہوگا جیسا فرسٹ ڈیورس میں ہوا تھا, سیم رول. اسی طرح طلاق کا میں نے آپ کو بھی پورا پروسیجر بتایا, مرد کو سین ہونا ہے, اس کو ایڈلٹ ہونا ہے, میچور ہونا ہے, ہوش مندی میں بولنا ہے, ایک دفعہ بولنا ہے ڈیورس, ایک دفعہ پہلے دیا تھا, اب اس کا سیکنڈ ڈیورس, ایک ہی دفعہ بولیں گے, ایک ہی دفعہ ہو جائے گا. یہ سب سنت طریقہ ہے. اور پھر اگر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈیورنگ دا عدت کہ بھائی ہم نے اکٹھے ہونا ہے تو اکٹھے ہو جائیں. اگر نہیں, اگر وہ مرد کہتا ہے نہیں اور دونوں کو یہ ریلیشن شپ لگتا ہے نہیں مینٹین کر سکتے ہیں, تو پھر بغیر کسی پین کے, بغیر کسی بٹرنس کے, اچھے طریقے ایمیکیبلی, ڈگنیٹی کے ساتھ, عزت کے ساتھ اس میرج کو پھر ختم کر لیں. تو یہ رولنگز جو ہیں اگر ان کو پراپر ریلیجیس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اینڈ میں کیا کہتے ہیں, ایک پاورفل ریمائنڈر دیتے ہیں کہ جو حد سے گزرے, جو حد سے گزرے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, ظالمون میں سے ہیں. تو یہ سبجیکٹ میٹر ایسا ہے کہ اس میں جب طلاق ہوتی ہے تو کوئی پیار سے نہیں ہوتی ہے, کوئی ایمیکیبلی نہیں ہوتی ہے, کانفلکٹس ہوتے ہیں, ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. جو بہت اچھی طرح کرتے ہیں وہ سب سنت کو فالو کر رہے ہیں, وہ اللہ کی رضا لے رہے ہیں. تو ڈینجر یہاں پر یہی ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ اپنے حساب پورا کر رہا ہوگا, چاہے مرد ہو چاہے عورت, they might exceed their limits. It is very important کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں کہ آپ ٹرانسگریس نہ کریں, آپ اپنی لمٹس کو ایکسیڈ نہ کریں. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 230. آیت نمبر 230 ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن then if, یعنی پھر ایک شرط آ گیا, حرف شرط آ گیا, کنڈیشنل پارٹیکل آ گیا. فإن then if کا لفظ ہے, طلقها یعنی کہ if he divorces her. طلقها آپ کو پتا ہے نا عورت کے لیے یوز ہوتا ہے. if he divorces, پھر اگر وہ اس کو طلاق دے, کس کو دے, اپنی بیوی کو طلاق دے. طلقها يطلق سوری طلق يطلق تطلیق, یہ کون سا ہے, فارم 2. تو یہ کنڈیشنل پارٹیکل ہے کہ پھر اگر وہ اس کو ڈیورس دے, 2 دفعہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد کی بات اب آ رہی ہے. فلا تحل, کیا تھا, فلا تحل له من بعد حتى تنكح. فلا تحل then not is halal. ابھی آپ نے پڑھا تھا فلا تحل then not is halal, not is permissible, تو حلال نہیں ہے ان کے لیے. فلا تحل له یعنی اس کے لیے حلال نہیں ہے, من بعد after, اس کے بعد, after that, حتى تنكح, تنكح ينكح نہیں ہے, تنكح یعنی عورت, وہ عورت until she marries, اس کے اوپر, مرد کے اوپر حلال نہیں ہے until جس بیوی کو اس نے طلاق دے, she marries, یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ. زوج کا مطلب ہے اسپاؤس یا ہسبینڈ, جبکہ وہ کسی اور مرد سے, اس مرد کے غیرہ یعنی اس کے علاوہ, اپنے اس ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور سے شادی کرے. اب یہ بھی بہت ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. فَإِن طَلَّقَهَا then if he طَلَّقَهَا then he divorces her, پھر اگر وہ طلاق دے اس کو, کون طلاق دے, جو دوسرا ہسبینڈ جس سے اس نے شادی کی ہے, اگر وہ طلاق دے اس کو, اگین there's a حرف شرط, کنڈیشنل پارٹیکل, فلا جناح علیہما then there is no sin on both of them. فلا جناح, there is no گناہ, there is no blame, there is no sin علیہما, ان دونوں کے پر. کن دونوں پہ, جو ہسبینڈ اور وائف پہلے تھے اور جس سے طلاق ہو گئی ہے, there is no sin upon them, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. جواب شرط ہے ان یتراجعا, that if they both ریٹرن, رجع کیا ہوتا ہے, ٹو ریٹرن, رجوع کریں. تو اگر وہ دونوں رجوع کریں آپس میں, ایک دوسرے کے یتراجع, دونوں آپس میں رجوع کریں, ان ظن, اگر وہ بہت سرٹن ہے, اگر وہ بہت بلیو کرتے ہیں, if they believe, اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہیں, ظن یا ظنو, ظنن, اگر وہ یقین رکھتے ہیں, اگر وہ سرٹن ہے, ان یقیما حدود اللہ, that they both یقیما, دونوں کے they both will be able to keep, وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے, حدود اللہ, the limits set by Allah, اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں اس کو رکھ سکیں گے, اس کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حدود اللہ, and those یا these are the limits set by Allah, اور یہ یا وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, یبینھا,
he makes them clear. वो खोल खोल कर बयान करता है. बय्यना युबय्यिनु तबयीनुन फॉर्म 2 है. लिकौमी यालमून, याद रखें, लिकौमी यालमून का मतलब है फॉर अ पीपल, फॉर अ नेशन, उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए, यालमून के जो नॉलेज रखते हैं, जो इल्म रखते हैं, जो जानते हैं, who know. ठीक है ना. अब ये चीज क्या है, ये 230 आया नंबर 230, इसको अपने पल्लू में बांध लें अच्छी तरह. ये क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है, द रूलिंग्स इन केस ऑफ अ थर्ड डिवोर्स. 2 दफा आपने डिवोर्स दे दी, एक दफा आपने बीवी को वापस ले लिया, सेकंड टाइम फिर आपने बीवी को वापस ले लिया, ये सब हो गया. अब क्या है, थर्ड टाइम आप लोगों की 2 डिवोर्स के बाद फिर आपकी गड़बड़ चली. अब आप अल्लाह के हुदूद नहीं रख सक रहे हैं, फिर आपकी गड़बड़ हुई. अब क्या हुआ है, दिस इज साइन ऑफ सीरियस ट्रबल, इरिवर्सिबल डिटोरिएशन हो गई उस रिलेशनशिप में. 2 दफा तलाक दे दिया, अल्लाह ने कहा 2 दफा ही तलाक है. तीसरी दफा क्या है, अब आपकी रिलेशनशिप जो है वो टोटल ब्रेकडाउन है, इसका सबूत है. और ये मैरिज जो है, यू कैन नॉट वर्क दिस मैरिज, इट इज नो यूज कि आप उस मैरिज में आप दोबारा जाएं. तो अल्लाह ताला का मकसद ये है, अल्लाह ताला हमको ये बता रहे हैं, स्कॉलर्स बताते हैं कि अगर एक मर्द ने एक दफा औरत को वापस लिया, दोबारा फिर वापस लिया, अब उनकी नई बन रही है, तो औरत को क्यों सफर करना पड़े द कॉन्सिक्वेंसेस. Why should she be forced to live with a man who has no respect for her, या who has little respect for her, जो उसकी इज्जत ही नहीं करता है, बार बार उसको तलाक देता है, उसको वापस लेता है. तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है ऐसे केस में, कि परमानेंट सेपरेशन हो जाए. हर पार्टनर यानी मियाँ बीवी दोनों को ये हक पहुंचता है कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें, किसी और ज़ौजन गैर, आपने देखा ना, किसी और गैर आदमी के साथ वो अपनी लाइफ को गुजारे और खुश रहे. ये एक एक्सट्रीमली रियलिस्टिक अप्रोच है. इसमें अल्लाह ताला प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहे हैं कि ना उसको डिनाई कर रहे हैं और ना कह रहे हैं कि आप ये क्यों, मतलब तलाक को बुरा नहीं कह रहे हैं वो इस मामले में, क्योंकि ये जरूरी हो गया कि तलाक हो जाए. और तलाक के बाद ये भी जरूरी हो गया कि ये दोनों अपनी अपनी लाइफ अच्छी तरह से खुशी से गुजारें. इस्लाम अलाउ नहीं करता है कि एक आदमी अपनी बीवी को सिर्फ हार्म करने के लिए रखे मैरिज में. तो अगर उसके पास एक लेजिटिमेट ग्राउंड्स है, उस मर्द को चाहिए, अल्लाह ताला के उस मर्द को चाहिए कि लेट हर गो. सो आफ्टर डिवोर्सिंग द थर्ड टाइम, सेपरेशन हो गई एंड फाइनल हो गई और इररिवोकेबल हो गई. पहले हम कहते हैं ना रुजू करने का, अब ये डिवोर्स हो गया, अब दे कैन नॉट कम बैक, यहाँ खत्म हो गया मामला. देयर रिलेशनशिप इज फिनिश्ड, ही इज नो लॉन्गर अ महरम टू हर, शी बिकम्स हराम फॉर हिम. ठीक है ना, याद रखें, वो इसका महरम नहीं रहा और ये उसके लिए हराम हो गई. उस औरत के लिए, उसके लिए ये है कि वो अपना सब कुछ, जो मर्द मैंने आपको बताया था, जो कुछ उसको दिया था मर्द ने उस शादी के दौरान, वो उसको दे दे वापस, इंक्लूडिंग हर महर, महर भी दे, और मैरिज में जितनी एक्सपेंसिव हुई है वो भी उसको दे, और इसके ऊपर कुछ भी लाजिम नहीं है कि उसको कुछ भी वापस दे. She does not have to reimburse the man for anything. जो आपकी जो कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट किसकी जिम्मेदारी थी शादी के दौरान, मर्द की थी, तो इसको कोई पैसे वापस करने के, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं. ये सब तमाम स्कॉलर्स ने लिखा हुआ, दिस इज प्रैक्टिकल एंड वर्केबल है. और ये क्योंकि उस जमाने में, उस वक्त दोनों की जब तलाक होती है, दोनों की सिचुएशन इमोशनल भी होती है, डेलिकेट भी होती है. इसको बहुत तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है. और जब थर्ड डिवोर्स हो जाए, उसके बाद देखें, ये सिर्फ थर्ड के बाद नहीं है, वुमन जब एक डिवोर्स भी हो जाता है ना और इद्दत गुजर जाती है, उस वक्त, मैं शायद इस वक्त आपको बताना भूल गई, कि वो आपस में, मियाँ बीवी आपस में भी दोबारा निकाह कर सकते हैं. और वो औरत और वो मर्द जो है, किसी और की, मर्द तो खैर 2-3 शादियां 4 शादियां कर सकता है, लेकिन औरत के लिए है कि व्हेन शी इज डिवोर्स, अगर एक दफा भी डिवोर्स किया उसने, इट इज अ फाइनल डिवोर्स, उनको वापस आने का हक है, उनको रुजू कर सकते हैं ड्यूरिंग द, मैंने बताया, इद्दत में खाली एक दूसरे से वापस आना है. अगर इद्दत गुजर गई तो दोबारा निकाह करना है, दोबारा नया मेहर रखना है. लेकिन अगर वो औरत एक डिवोर्स के बाद फाइनल हो गया, शी वांट्स टू मैरी समबडी एल्स, तो वो फ्री है, वो खुली है, उसको इजाजत है, लीगली शी कैन मैरी एनीवन. दैट इज इवन आफ्टर द फर्स्ट डिवोर्स, लेकिन 3 मेंसेस गुजर जाए या 3 मंथ्स गुजर जाए. ठीक है ना, ये आप याद रखें. हमको लगता है जब तक 3 नहीं होगा, जब तक नहीं होगा. तो ये पहले का हो गया, दूसरी दफा भी ऐसा हो गया. नाउ अब थर्ड डिवोर्स है. थर्ड डिवोर्स में क्या, नाउ लीगली क्या है, उस औरत को भी हक है कि वो किसी के साथ शादी, मर्द को तो वैसे ही हक था, औरत को ये हक है लीगली वो किसी और से शादी करे, और फिर उसके बाद जिस मर्द से वो शादी करे, नॉर्मल शादी हो, विद द इंटेंशन कि मैं इस मर्द के साथ हमेशा के लिए शादी कर रही हूँ, इट्स लाइक परमानेंट, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, सब कुछ. लेकिन फिर क्या हो जाए कि या तो वो हस्बैंड इसको तलाक दे दे, सेकंड हस्बैंड,
वो इसको तलाक दे दे या वो हस्बैंड फौत हो जाए। अगर ऐसा हो जाए खुद ब खुद, यानी कि इसने कुछ नहीं किया, इसका इंटेंशन ये नहीं था कि ये उससे शादी करके वापस हस्बैंड को जाए, तो तब ये क्या है, शी कैन रीयूनाइट विद हर फर्स्ट हस्बैंड, शी कैन गो बैक टू हर फर्स्ट हस्बैंड, अगर वो दोनों ये महसूस करते हैं कि वी कैन कीप द लिमिट्स सेट बाय अल्लाह, अल्लाह के हुदूद को कायम रख सकें। सबसे जरूरी चीज इसमें, ये सब कुछ आपको मालूम था, सबसे जरूरी चीज जो हमें अंडरस्टैंड करना है कि दिस शुड टेक प्लेस नॉर्मली, जेन्युइनली। इट इज एक्सट्रीमली important for us to understand कि निकाह तहलील क्या है, इस हराम। हम कहते हैं ना हलाला, हलाला उर्दू में क्या कहते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, ओ हलाला करके दोबारा अपने हस्बैंड के पास आ जाओ, हलाला करो दोबारा अपने हस्बैंड के पास आ जाओ, ये निकाह तहलील कह रहा था। ये निकाह तहलील हराम है। आप कहेंगे क्यों हराम है, हमें तो हमारे स्कॉलर्स यही बताते हैं पाकिस्तान में कि भाई तुम किसी और से शादी कर लो और उससे तलाक ले लो और आ जाओ। वो शादी उसने किस नियत से की? दैट अरेंज्ड, प्री अरेंज्ड मैरिज वाज फेक, इट वाज हराम, ऑलरेडी हराम था। अब वो लड़की जाके एक लड़की जो है वो एक्स मर्द से शादी कर रही है और विद दिस नियत कि मैं इससे शादी, और इसमें बड़े बड़े किस्से हुए। आदमी कहेगा तुम मेरे ड्राइवर से शादी कर लो, तुम मेरे क्वार्टर में रहने वाले से शादी कर लो, ये मेरा दोस्त है तुम इससे शादी कर लो, ये तुम्हें तलाक दे देगा, इद्दत खत्म होगी, ये तुम्हें तलाक दे दे नहीं, ये तुम्हें तलाक देगा, इद्दत खत्म होगी और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ये क्या कर रहे हैं, किसको फूल कर रहे हैं? अल्लाह को भी फूल कर रहे हैं, अपने आप को भी फूल कर रहे हैं और हराम मैरिज में एंटर कर रहे हैं। दैट मैरिज इज नॉट अलाउड। तो जब तक वो उस आदमी के साथ मैरिज हुआ ही नहीं, निकाह हुआ ही नहीं, इट इज हराम। जब उसके साथ उसने निकाह कर लिया विद द इंटेंशन कि मैं सिर्फ टेम्परेरी निकाह करूं, दैट निकाह इज नॉट वैलिड। निकाह इज सपोज टू बी परमानेंट, बाद में नहीं चले वो अलग बात है। तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि वो निकाह तहलील भी हराम है, इट इज अ फेक प्री अरेंज्ड मैरिज। इंटेंशन यही है कि जैसे ही हम इद्दत गुजर जाएगी, ये मुझे तलाक देगा, इज्जत गुजर जाएगी और मैं अपने मियाँ के पास वापस जाऊंगी, या वो जो मियाँ है वो इसलिए करा रहा है कि आई वांट यू बैक, लेकिन मैं तुम्हें ले नहीं सकता हूँ, 3 तलाक हो गए। तो इट डज नॉट मेक परमिसिबल फॉर दिस वुमन टू लिव विद दैट आदमी जिसके साथ उसने निकाह जेन्युइन नहीं किया। वो उसके साथ जिना करेगी, वो उसके साथ जिना करेगा, वो रहेंगे इकट्ठे, दे विल नॉट बी मैरिड। और जब वो ये जिना का टाइम खत्म होगा और फिर वो कहेगी अब मैं अपने वाइफ हस्बैंड के पास वापस जा रही हूँ, फॉर्मर हस्बैंड के पास, दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड, क्योंकि उसके 3 तलाकें हुई नहीं और ये निकाह काउंट ही नहीं हुआ। इसको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो, अच्छी तरह दिमाग में बैठा ले कि ये जो कहते हैं ना ड्रामा, ये ड्रामा अलाउड नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह हैज कर्स्ड द मुहल्लिल एंड द मुहल्लल लहू। मुहल्लिल क्या होता है? मुहल्लिल इज द वन जो किसी आदमी, जो वो आदमी जो उस औरत के साथ शादी करेगा, किसी का दोस्त था या ड्राइवर था या जो भी था, वो शादी करेगा कि चलो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ और तुम इस तरह से मैं तुम्हें तलाक दूंगा, यू गो बैक टू योर हस्बैंड। ये मुहल्लिल हो गया वो आदमी। मुहल्लल लहू कौन होता है? वो फर्स्ट हस्बैंड। जब फर्स्ट हस्बैंड जिससे तलाक हो गई है वो ये अरेंज करे कि चलो तुम इससे शादी कर लो, अल्लाह ताला क्या क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह हैज कर्स, लानत है मुहल्लिल के ऊपर भी और मुहल्लल लहू के ऊपर। ये ड्रामा नहीं खेलना है। तो बहुत क्लियरली अल्लाह ताला बता रहे हैं, ये हदीस भी बता रही है कि ये उस कपल के ऊपर नहीं था कि जिसने खेल खेल में तलाक भी लिया, 2 दफा तो ले लिया, तीसरी दफा तलाक भी हो गई, उसके बाद ये जो है अभी फेक शादी कर रहे हैं, जेन्युइन शादी नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी कंडीशंस, मेरे जो लिमिट्स आप लोगों के लिए मैंने लगाए उसको आप फॉलो करो। एंड ऑफ द आया अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? क्लियर कह रहे हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ये बहुत क्लियर है उन लोगों के लिए हु आर केपेबल, लिकौमी यालमून, ये उन लोगों के लिए जो who are people of who are capable of learning and understanding। अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी स्कॉलर से पूछें, ढंग के स्कॉलर से जिसको नॉलेज है। आप ये नहीं कि पाकिस्तान में इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए, मस्जिदों में भी जगहें बनाई, हर जगह पर आ जाए यहाँ हलाला कर लें, वही मौलवी साहब जो आएंगे वो हलाला करके उसको वापस देंगे। दिस इज लानत, उस पे भी लानत है, उस पे भी लानत है, औरत पे सारी उम्र लानत है, क्योंकि जब when she goes back to her husband, वो पहले भी जिना कर रही थी और अभी भी वो जिना करती रहेगी। नेक्स्ट आया था आया नंबर 231। मैं ये समझती हूँ कि मैं 231 पे अभी ना जाऊं, आई एम स्टॉपिंग हियर डिलिबरेटली, ठीक है ना। मैं इसलिए स्टॉप करी क्योंकि मुझे पता है आपके क्वेश्चंस जरूर होंगे, अगर क्वेश्चंस नहीं है वी कैन डू 231। तो आई विल ओपन द फ्लोर कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी टॉपिक है एंड हमारे माशरे में जो है जिस तरह से लिया जाता है, इंडिया पाकिस्तान में 3 तलाक का एक सिस्टम बन गया, फिर हलाला का एक सिस्टम बन गया। तो प्लीज आप क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, वरना आई विल गो टू आया नंबर 231।
Yes. जी, मेरा सवाल ये है कि आफ्टर द फर्स्ट डिवोर्स इद्दत का टाइम गुजर गया एंड दे फिर वो रुजू करना चाहते हैं, तो यू सेड दैट दे हैव टू रीमैरी अगेन. हाँ, सेम के साथ दोबारा फ्रेश महर रख के निकाह करेंगे. So what happens to the meher from the previous marriage? खत्म, that marriage is dissolved. That's gone. So he has to pay. He has to pay. वो मैंने बताया ना, he has to pay everything. And the same rule applies after the second divorce. After the second, दूसरी. लेकिन याद रखें, देखिए महर जो है ना, नॉर्मली क्या होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे उसी वक्त महर देते थे. Right. कहते हैं ना कि मुअज्जल और गैर मुअज्जल, तो वो कहते हैं उसी वक्त आप महर दे दीजिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई अंगूठी है तो वो लाके दे दो. और हमारे पास अब क्या सिस्टम बन गया है कि वो लिख के दे देते हैं, बोल के दे देते हैं, और सारी उम्र उसको तंग करते हैं, उसका महर उसको देंगे नहीं. कोई जमीन लिख के दे देगा, कोई जेवर लिख के दे देगा. पाकिस्तान में यही होता है ना. और जब या तो तलाक हो जाएगी या वो मर जाएगा आदमी, उसको उसका महर कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि फिर तो इट बिकम्स लाइक इनहेरिटेंस. अगर और तलाक हुई तो तलाक में वो नहीं देते हैं, और लोग बीच में आते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव डेलिकेट इशू. लेकिन महर देना जरूरी. इट्स फर्ज ऑन हिम टू गिव बैक द महर, टू गिव द महर टू हिज वाइफ. और ये जो रुजू करने का टाइम है, आफ्टर 3 months हैव पास्ड, फिर उसके बाद कितना टाइम रहता है उनको वापस आने के लिए? एज लॉन्ग एज यू हैव योर होल लाइफ, क्योंकि आपने एक तलाक दी है. It's beautiful. वो अगर चली भी जाती है, कहीं और रहती है, रहे माँ के पास जाए, इंग्लैंड चली जाए, फ्रांस चली जाए, टिम्बकटू चली जाए, कहीं भी चली जाए, डजंट मैटर. शी डिड नॉट गेट मैरिड अगेन. ये इसने किया भी होगा तो कोई बात नहीं, बट दे हैव देयर होल लाइफ. अगर उनको लगता है कि दे कैन follow the rules of Allah, they can keep the limits that Allah has set for them, they can come back even after 20-40 years whatever, and they can come back in 1 month or 2 months. बिल्कुल खुला है, क्योंकि 1 डिवोर्स हुआ है. or within that time, she, once he divorces her one time, she doesn't really want to live with him. तो उसको तो पूरा हक है चले जाने का, even if he wants to do the रुजू, right? नहीं ना, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ये मर्द के इख्तियार, आपने पढ़ा था ना पिछली दफा कि ये हक को, ये ज्यादा हक ये मर्द को है वापस लेने का. देन व्हाट हैपेंस इज, जिस तरह मैंने बताया कि शी डजंट वांट टू लिव विद हिम, तो वो बोलेगी, या तो वो खुला लेगी, और या तो फिर कहेगी मैं नहीं रहना चाहती हूँ इसके साथ, या शी विल से वो बोलेगा तो मैं लेना चाहता हूँ, और ये बोलेंगे नहीं, तो आर्बिटर्स आएंगे, बीच में आएंगे, कुछ भी बात करेंगे, एंड देन शी सेज नहीं, आई डोंट वांट टू गेट बैक टू हिम. तो ही हैज द राइट टू टेक हर बैक, बट देन शी विल हैव टू check with somebody and करना पड़ेगा, and families आए, जो भी आए, और वो कहे नहीं, I don't want to go, तो वो इद्दत पूरा करेगी, and then she can leave. इद्दत के दौरान she is there and उसका हक है मेंटेनेंस करना, but if she says मुझे नहीं रहना, I want to leave, then she can leave. Thank you. She can just leave the house and she can say नहीं, मुझे रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ. And this is still not खुला. खुला जब ये खुद मांगेगी, खुद ये इनिशिएट करेगी, that's a खुला. So but if he refuses to give her खुला, then तो यही तो मुश्किल हो जाती है ना. इसीलिए वो कहते हैं कि अभी मैंने कुछ रिसेंट डिवोर्स देखे हैं कि वो औरत जो है तो वो अपने मियाँ को कहती नहीं, तुम मुझे 3 तलाक 3 दफा दे दो, ताकि फिर तुम मुझे वापस ना लो. ये भी मैंने देखा. केसेस आते हैं ना तो पता चलता है. अभी बहुत सारी डिवोर्स तो बहुत कॉमन हो गई, इतने केसेस आते हैं. एंड इफ यू सिट विद शेख मुस्तफा वन डे एंड यू कैन आस्क हिम किस टाइप के डिवोर्सेस हैं, अगर उनका नाम नहीं लेंगे, किसी का बताएंगे नहीं, लेकिन वो बताएंगे किस किस तरह के डिवोर्स केसेस उनके पास हैं. निकाह के भी आते हैं, डिवोर्स के भी आते हैं. तो उसमें यही है कि मर्द जो है कहता है वापस जाना, और कहेगी नहीं, इसने मुझे बहुत तंग किया, मैं नहीं जाऊंगी इसके पास वापस. वो ले लेती है डिवोर्स, वो वेट करती है इद्दत पूरी हो जाए, एंड देन इद्दत पूरी होगी तो बस खत्म, फिर तो हो गया, फिर तो फ्रेश निकाह की जरूरत है. ही कैन नॉट से अच्छा मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ. तो मैंने ये भी एक केस देखा जिसमें औरत ने अपने हस्बैंड से, उस वक्त हस्बैंड था, अभी पहली तलाक हुई, और उसने कहा कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे वापस नहीं लोगे ड्यूरिंग द इद्दत. ये भी केस है. तो हो जाता है अगर 3 प्रिंसिपल पीरियड्स गुजर जाएं, और तो फिर वो अपना, मतलब ही हैज द राइट टू टेक हर बैक एंड शी कैन एक्सरसाइज हर राइट तो नहीं तो शी कैन ट्राई कि भाई चलो मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ. इसीलिए वो कहते हैं ना, बार बार आ रहा है, अभी फिर आएगा, ये एक दफा नहीं खत्म हुआ, फिर अभी तलाक के ये 2-3 और मेरे ख्याल 2 और आयतें चलेंगी इसी में. जी, और कोई सवाल? जी, जैसे कि आपने बताया कि हलाला जो है वो हराम है, वो नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हम लोगों ने खुद अपने तौर पे इजाद किया है या नहीं, कैसे, मतलब लोग? नहीं, मैं बताती हूँ. देखिए,
आयत क्या है, आपने आयत पढ़ी ना कि वो मर्द अपनी औरत को उस वक्त तक वापस नहीं ले सकता है जब तक कि वो औरत किसी और से शादी ना करे। जी जी अब ये लफ्ज़ है, इसके अंदर नीचे पूरी क्लैरिफिकेशन तो नहीं लिखी है ना, अपनी मर्जी से करे और जेन्युइन हो, ये चीजें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फर्दर बताया कि मुहल्लिल और मुहल्लल लहू जो है वो दोनों उन पे लानत है, तो वो शादी नहीं होती है। इसीलिए तो इंडिया पाकिस्तान में ये करते हैं ना सब, जी बहुत जी कॉमन है वहां पर। ओ 3 तलाकें हो गई, मैंने तो दे दिया 3 तलाकें, अब क्या होगा। एक तो वो ये करते हैं कि 3 तलाकें एक साथ देते हैं पाकिस्तान में जी और लिखवा भी लेते हैं, लाइक दे गो टू दो रजिस्ट्रार या जो भी होता है मैरिज का, उसको लिखा देते हैं। और हमारे में भी यही होता है कि वो भाई लिखा देते हैं वहां पर कराची में, वो कहते हैं कि लिख दो 3 दफा लिख दो, तो 3 जी तलाक, और फिर कहते हैं ये बस 3 तुम्हारे हो गए पूरे तरह। दिस इज तलाक बिदा, इस कॉल तलाक बिदा, इट इज नॉट द रियल तलाक। मैंने बताया ना कि हराम भी है ये, लेकिन कोई बात नहीं, कोई कहता है हराम है, कोई कहता है, लेकिन तलाक तो फिर भी हो जाती है और एक तलाक काउंट होती है। लेकिन अगर आपने 3 एक साथ लिख के दे रहे हो ना, आप कह रहे हैं नहीं मेरा मकसद ही है कि ये 3 तलाक है। एक और तरीका तलाक का होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, चलें आप सोचेंगे कि ये बीच में से मिसिंग क्यों है। एक तो तलाक अहसन कहलाता है ना, तलाक अहसन, ये जो मैंने आपको तरीका सिखाया, द सुन्ना वे ऑफ गिविंग तलाक, जो मैंने अभी बताया कि एक तलाक दे बस। जब अगर आप वापस रुजू कर लिया, फिर आपने एक तलाक और दे दी, चलो 2 दफा होगी, दैट इज इट। जी तीसरी दफा आप अलग हो गए, अब तीसरी दफा अलग हुए, आपने तलाक दे दी, अब आपके लिए वो हराम हो गई आपकी बीवी, आप उसके महरम भी नहीं रहे, आप उस घर में भी रह रहे हैं, इद्दत के लिए रह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर रहना है तो आप रहें, लेकिन आप ये है कि उस इद्दत के बाद आपकी तलाक कंप्लीट हो जाएगी। इद्दत से पहले कंप्लीट नहीं होगी, इद्दत पर कंप्लीट होगी, लेकिन ऑलरेडी आपके लिए इररिवोकेबल हो गया। उस इद्दत के दौरान आप वापस नहीं ले सकते बीवी को, ठीक है ना। आपने कर 3 तलाक या तीसरी दफा हो गया, चाहे 10 साल बाद हुआ, चाहे 20 साल बाद हुआ, चाहे 2 दिन बाद हुआ, तो ये तलाक एहसन कहलाता है, ये तरीका। एक होता है तलाक हसन, ये लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तलाक हसन, तलाक हसन में ये है कि वो भी एक लॉ बना, ठीक है ना, कि आपने पहले बीवी को तलाक दे दी, उसके बाद आपने वेट किया कि इसका एक पीरियड खत्म हो जाए। जब इसका एक पीरियड आ गया, तो उसके बाद फिर आपने दोबारा जब इसकी पाकी आई, उसमें आपने उसको कहा कि अब मैं इसको सेकंड तलाक देता हूँ। मैंने एक सिटिंग में नहीं दिया, मैं 1 महीने बाद दे रहा हूँ, सेकंड तलाक दी। और जब सेकंड टाइम जब वो प्योर हुई, मतलब 2 पीरियड्स के बाद, तो अब मैं इसको तीसरी तलाक देती। इसको तलाक के हसन शायद कहते हैं। एक तो हसन था, ये हसन था, मतलब ये भी ठीक है क्योंकि आप नहीं चाह रहे हैं, औरत भी नहीं चाह रही, मर्द भी नहीं, हम दोबारा आपस में मिले, तो 3 अलग अलग तलाकें हो गई, एक सिटिंग में नहीं हुई, तो ये भी आपकी तलाक, और फिर दिस विल बी काउंटेड एज 3 तलाक। लेकिन जो तलाक बिदा है वो एक ही सिटिंग में अगर आप कह देते हैं तो वो तलाक बिदा है, और उसका मैंने बताया। तो आपका क्वेश्चन क्या था अरफा कि ये कहाँ से, हलाला हाँ, जी तो ये हलाला जो है, ये जब देखा कि कुरान में लिखा हुआ है कि जिसने हदीस नहीं पढ़ी हुई है और जो कुरान को पढ़ रहा है और जो खुद से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सहाबा के जमाने में नहीं था ना, बाद में भी नहीं था, इट स्टार्टेड फ्यू 100 years ago, जब हमारे उलमा ने कहा कि भाई इसको तो कुरान में लिखा है, जब तक कि किसी और से शादी नहीं करेगी, ये वापस अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा सकती, तो चलो शादी का कोई तरीका निकाल लो, तो उसको हलाला बना दिया। अच्छा उस पर लिखा हिल्लुल लहुन कि ये आपके लिए हलाल नहीं है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दोनों पे लानत है, दोनों पे कर्ज है। तो अब इसको बना दिया इस तरह, और ये बन गया, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में। बेशक और कोई थैंक यू सवाल? जज़ाकल्लाह खैर समझ में सबको आ गया कि नहीं, कि जी तलाक बिल्कुल दफा देने से फाइनल है। लोग पता है लेकिन 3 तलाकें तो दी नहीं, नहीं 3 तलाकें है ही नहीं, ना कुरान में ना हदीस में लिखा ही नहीं है। अतलाक मर्रतान, एक दफा दिया, फिर आपने दोबारा मिल गए, फिर आपने दूसरी दफा दिया, एंड दैट इज मर्रतान, 2 times। ओके जज़ाकल्लाह खैर और वही और कोई सवाल है? चलें फिर एंड करूं, इंशाल्लाह वी मीट ऑन। just one more thing, तो ये जो हलाला का जो कॉन्सेप्ट आता है, that is only after the third divorce. and ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ, it's not halal, right? Yeah, it's a concept, yes. It has to be genuine marriage with a person with the intention कि मैं इससे शादी genuinely कर रही हूँ, दोनों को। Thank you. चलें फिर इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं थर्सडे को, परसों। देखो अल्लाह करे कि मुझे ऐसा मौका मिला। आई एम स्टिल इन द टोरंटो में, आगे पीछे हो रही हूँ। कल मैं मिसिसागा में थी, आज मैं एजेक्स में हूँ, कल मैं मार्कम, आज मैं शाम को मार्कम जा रही हूँ, एंड देन टू मिसिसागा। इंशाल्लाह दुआ करें कि मुझे ये टाइम मिल जाए कि मैं आप लोगों की इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Jazakallah khair. Thank you very much for your time. Yeah. Okay.
السلام علیکم. دعا میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک. آپ یاد رکھیں، آپ سفر میں ہمارے دعا کریں ضرور. میں روز کرتی ہوں، میں نے بتایا میں روز کرتی ہوں تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. روز کریں، بھولے بھی نہیں، بھولنے نہیں دیں گے ہم آپ کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو، جزاک اللہ خیر.